Good evening, everyone. Within 2 minutes, I will start. I think I should start now. Okay, so, ji sir. So, bachcho, last time what we have covered, we have seen, just let me revise that. We have seen Ventoff factor, am I right? And we have also seen two derivations, which was depression in the freezing point, elevation in the boiling point, वो तो पहले ही हो चुका था. And then we have already seen osmosis. ठीक है? So what is osmosis? It is a flow of solvent from lower concentration to higher concentration. That is called as osmosis, correct? Through the semi-permeable membrane. After that, we have seen, just give me a second. We have also seen the relationship between of osmosis with molecular mass of your solute. So M2 का value already आपने calculate किया है. Then we have seen what is Ventoff factor, which is represented by I. It is the ratio of M theoretical upon M observed. So it is related with the molecular mass. ठीक है? So there are 4 colligative properties. Already you have seen delta F upon delta F naught. ठीक है? This is theoretical, this is observed. So O stands for observed. Similarly, we have delta TB divided by delta TB naught. This is also observed elevation in the boiling point. This is theoretical and this is observed. Then after that, we have delta. Just give me a second, huh, bachcho. Okay, then after that we have delta TF upon delta TF naught. This is theoretical, this is observed, depression in the freezing point. And finally we have pi upon pi naught. Okay, so these 4 colligative properties we have seen with respect to the Ventoff factor. Okay, then I have already taught you this delta P. Abhi formula kya tha delta P ka? W2 into M1 upon M2 into W1, and we are going to put just I in front of that. Okay. Similarly, delta TB, I into KB into M. Delta TF, what is the formula? I into KF into M. And what is pi? That is I into MRT. So these are the 4 colligative properties which are related with the Ventoff factor. Okay. Then we have seen how these colligative properties are related with the electrolytes and non-electrolytes. Always, yesterday only you have answered me why the colligative properties of electrolytes are higher than non-electrolytes, because number of ions are formed. Okay, so we can also calculate the Ventoff factor with respect to that. So we'll write down over here, suppose I have NaCl. So how many ions are formed? Na plus and Cl minus. So I is equals to 2. I'm writing here Na2SO4. So how many sodiums are there? 2 sodium ions and 1 SO4, 2 minus ion. So I is equals to 3. If I'm writing here Al2O3, so 2 Al3 plus and O2 minus. ठीक है? But कितने O2 minus है यहाँ पे? 3. So what will be the Ventoff factor? It will be 5. Like this you can calculate the Ventoff factor. यहाँ तक किसी को कुछ doubt है? I hope it is very clear to you all. Any questions till now, bachcho? Yes, ma'am. Sure? Should I proceed? Just give me a quick yes into the chat box. Okay, today maybe I will finish the chapter क्योंकि अपना सिर्फ एक ही derivation रह गया, and then I will take some numericals. Okay, ठीक है? Now we will study the relationship of Ventoff factor and degree of dissociation. ठीक है? Can anyone tell me what is degree of dissociation? What is dissociation? Dissociation means breaking. Degree of dissociation means
the extent to which dissociation of ions takes place. Correct? Now suppose I am writing over here acid. ठीक है, acid will dissociate as H plus and A minus. Correct? So what I will write down here, Ka is equals to concentration of H plus, concentration of A minus divided by concentration of HA. So Ka stands for dissociation constant. ठीक है? Similarly, we can also calculate here degree of dissociation, which is represented by alpha. Alpha stands for degree of dissociation. Okay? Now this will tell you to what extent your electrolyte has been broken down. Okay? Now I will give you a very simple example. Suppose I will take over here 10 molecules of HCl, right? So HCl is a strong electrolyte. As you're going to put it in the water, it will form H plus and Cl minus ions. So out of these 10, suppose 9 ions have been broken down. So what you're going to write down? Alpha is equals to 9 by 10. What is my answer? 0.9. Means it is approximately equals to 1. When it is approximately equals to 1, it is called as strong electrolyte. Means almost ions have been broken down completely. So more number of ions are formed, and because of that more conduction of electricity takes place. So alpha से क्या पता चलता है कि कितने ions break हुए. ठीक है, so that is called as degree of dissociation. ठीक है, if I'll talk about weak electrolyte, suppose I have over here acetic acid CH3COOH. Again I have taken over here 10 molecules. Now this time out of 10 molecules, suppose 2 molecules have broken. Correct? तो मैं कैसे लिखूं? Alpha is equals to 2 by 10. मतलब my answer is 0.2, which is much lesser than 1. Correct? So this indicates that it is your weak electrolyte. Is it clear? So degree of dissociation basically tells you about the extent to which your electrolyte is broken down into the aqueous solution. ठीक है, अगर मेरा आंसर approximately 1 आता है, मतलब it is your strong electrolyte, maximum number of ions have been formed. ठीक है, if my answer is much lesser than 1, it indicates that I have formed less number of ions, and that is why it is a weak electrolyte. ठीक है, अब ये degree of dissociation generally people calculate in terms of percentage. So whatever my answer is, suppose 0.9, it is multiplied by 100. Dissociation कितना हुआ? 90%. Here my answer is 0.2. 0.2 multiplied by 100 means it is only 20%. So it is your weak electrolyte. ठीक है? Now note down one thing, not even a single electrolyte can show degree of dissociation exactly equals to 1. It is not at all possible. You can write down it is approximately equals to 1. It can never be exactly equals to 1, because कभी भी 100% dissociation नहीं होता है. Ions will always remain in the solution, but there are some undissociated part also remain into the solution. ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा क्या बोला, out of 10 9 ions can be broken down, but not 10 on 10. It is not at all possible. Understood? Even in the case of strong electrolyte, but we assume that it is approximately equals to 1. That is why degree of dissociation is higher. Degree of dissociation का meaning समझ आया सबको? What is degree of dissociation basically? It is the extent to which ions are broken down into the aqueous solution. अगर alpha 1 आता है और approximately 1 आता है, means it is your strong electrolyte. If alpha is much lesser than 1, means it is your weak electrolyte. Is it very clear? Is it very clear, बच्चों? Any questions in this? Okay, ठीक है. Now we have to relate over here Ventov factor. एक मिनट. Now we have to relate over here Ventov factor and this degree of dissociation. ठीक है. अभी आपने वो law of mass action किया है 11th standard में. How to write down the law of mass action and पता नहीं अभी मुझे, but I will teach you. Don't worry. ठीक है. So we are going to write down a relationship between I and alpha. I is Ventov factor. Alpha is degree of dissociation. ठीक है. Now I will say I will consider an electrolyte which is AX and BY. This X and Y represents their number of moles. जैसे कि मैं यहाँ पे ले सकती हूँ Al2O3,
I can take NaCl, तो यहाँ पे x1 है, y1 है, यहाँ पर x2 है and y is 3. Suppose I am writing here MgOH twice. So here x is 1, y is 2. So I am going to consider here any electrolyte which is AX and BY. ठीक है, this is your electrolyte. This will dissociate in the form of A y minus plus b ay plus and bx minus. ठीक है, अब यहाँ पर इसको इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय y as we are using the balanced equation. यहाँ तक सबको समझा? I am going to consider an electrolyte which is ax and by. It will dissociate in the aqueous solution as x moles of ay plus and y moles of bx minus. करेक्ट? आपको पता है ना, चार्जेस को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से. करेक्ट? सो दिस इज द केस. नाउ इनिशियली व्हाट आई विल से, इनिशियली मतलब जब तक डिसोसिएशन नहीं हुआ, आई हैव ओवर हियर 1 mole of this, 0 moles of this, 0 moles of this. Agreed? This much part is clear. What I said, Yes, I am ma'am. using over here AX BY. कुछ भी नहीं समझेगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. ये कैसे ब्रेक हो गया? A Y plus X Y, sorry, B X minus. Correct? These X and Y are nothing but number of moles. Initially means before any dissociation. What will happen? It is 1 mole. This is 0 and this is 0. ठीक है? Then after that, at equilibrium. What do you mean by equilibrium? Equilibrium means a process will not stop. बल्कि क्या होता है, सारे concentrations and ions everything becomes equal. तो अभी देखो, हाँ, if alpha is degree of dissociation for A, अल्फा ही बोलेंगे ना कि y जो यहाँ पर जो ions बने हैं A y plus. ठीक है, so this I am going to represent with the help of alpha. Alpha क्या था? Degree of dissociation means the extent to which you are forming the ions. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये अल्फा हो जाएगा. करेक्ट? बट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज 1 माइनस अल्फा, बिकॉज टोटल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो सकता है? 1. मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? इट इज 1. तो 1 में से अल्फा और अल्फा निकल गया, तो जो बचा हुआ है दैट इज अनडिसोशिएटेड. अंडरस्टूड और नॉट? जस्ट से Yes, यस और ma'am. नो. पक्का समझ आया? इफ आई से अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, अल्फा इज ऑल्सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर बी. ठीक है, मैक्सिमम डिसोसिएशन कैन बी डन एज 1. तो अगर अल्फा अल्फा निकल गया तो 1 माइनस अल्फा को निकाल दिया, तो जो बचा हुआ है दैट इज योर अनडिसोशिएटेड फॉर्म. इज इट वेरी क्लियर? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 माइनस अल्फा मोल्स, यहाँ पर x मोल्स है ना, तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय x एंड दिस बाय y. चलो यहाँ तक किसको नहीं समझा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. अगेन आई एम रिपीटिंग, I am going to taking out the relationship between Ventov factor and degree of dissociation. We will consider an electrolyte. It can be strong also, it can be weak also. It depends how many ions you are going to form. But as I told you, 100% dissociation is not possible. Correct? So I will take AX and BY. It will dissociate as follows. ठीक है? So initially, if it is having 1 mole, this is having 0 mole and this is also having 0 mole. Correct? Then I will say at the equilibrium, some of the ions are formed which is in the form of AY plus. तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा. तो ये क्या है? This is 1 minus alpha which is undissociated, which will remain as it is into your aqueous solution. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया है तो मैंने इसको ऐसे ही रखा, बट यहाँ पर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? x moles of A and B moles of Y. So you have to multiply x multiplied by alpha and y multiplied by alpha. Is it very clear? Any questions till now? किसी को कुछ पूछना है? Please feel free to ask if you have any doubt. Otherwise मैं आगे बढ़ती हूँ. Correct. ठीक है, चलो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों? We will take out total moles after dissociation. क्या करेंगे? Total moles मतलब क्या होता है? Addition of all this ना, 1 minus alpha plus x into alpha plus y into alpha. Correct?
अब देखो हाँ, इन सब में से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ? अभी इसको ना थोड़ा रीअरेंज करते हैं. आई विल राइट डाउन एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा. ठीक है. व्हाट कॉमन आई कैन टेक आउट फ्रॉम हियर? बोलो. अल्फा कैन बी कॉमन ना, तो क्या लिखेंगे? अल्फा कॉमन आ गया तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 नहीं, एक मिनट, इसको ना ऐसे लिखना चाहिए था. रुको, ठहरो, वापस से लिखती हूँ. एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1. समझा क्या किया? सारे अल्फा को एक साथ लेके आ गए. अभी अल्फा निकालो. तो एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस 1. अभी ये समझा स्टेप सबको? व्हाट आई डिड, एक्स अल्फा वाई अल्फा को पहले यहाँ पे लिखा एंड 1 माइनस अल्फा आई हैव रिटन ओवर हियर. बट एज आई हैव टू टेक आउट अल्फा एज कॉमन, आई एम गोइंग टू rearrange this equation as एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1. अभी कॉमन क्या निकला? ये देखो, यहाँ से अल्फा गया, यहाँ से भी अल्फा गया, यहाँ से भी अल्फा गया. व्हाट यू आर गेटिंग? एक्स प्लस वाई माइनस 1 बचा ना, एंड दिस इज प्लस 1. इज इट वेरी क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ गया? हाँ, ठीक है. अब मैं क्या करूंगी पता है? आई विल राइट डाउन अल्फा n माइनस 1 प्लस 1. मतलब मैंने क्या किया अभी यहाँ पे? क्या लगता है आपको? व्हाट आई हैव डन ओवर हियर? किसको n कंसिडर कर x दिया? प्लस वाई को n वेरी कंसिडर. गुड, वेरी गुड. वेर n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. ये सबको समझा? ठीक है. सो ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अब हम जाएंगे I के फॉर्मूला पर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर I is equals to actual moles of particles which are dissociated. मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, पर डिक्टेट करने के टाइम पर I will tell you. लास्ट टाइम बताया था मैंने फॉर्मूला, actual moles of particles dissociated divided by total, क्या लिखा है? Okay, sorry. Moles of formula unit dissolved into the solution. So I is equals to actual mole क्या टूटा बच्चों? ये टूटा ना, अल्फा n minus 1 plus 1. This is the actual which has been dissociated. ये हम लोग को इस इक्वेशन से मिला ना कि ये हम लोगों का टूटा, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? अल्फा n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन. कितना फॉर्मूला यूनिट हमने डिसॉल्व किया सॉल्यूशन में? ओनली 1. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर 1. दिस स्टेप इज क्लियर. What is the formula? I is equals to actual moles of particles which have been formed into the solution after dissociation. मतलब dissociate होने के बाद कितने आयंस बने? तो मैंने अभी यहाँ पे प्रूव किया ना, टोटल नंबर ऑफ आयंस तो इतने थे, अल्फा n माइनस 1 प्लस 1. ये मेरे आयंस एक्चुअली बने सोल्यूशन में. और प्रेजेंट कितने थे? ax by एक ही मोल था ना. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो I is equals to अल्फा n माइनस 1 प्लस 1. अब क्या करूंगी? ये प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा n माइनस 1. कैन आई गेट द वैल्यू फॉर अल्फा? इट इज I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1. ये रहा आपका रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर. इजी था? इज इट इजी? किसको नहीं समझा? ठीक है, वापस से बोलती हूँ, जस्ट लिसन इट केयरफुली. आपको अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझा रहेगा ना तो ये बहुत अच्छे से आ जाएगा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? जितने आयंस, मैक्सिमम आयंस कितने ब्रेक हो सकते हैं, दैट वी कैन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. करेक्ट? सो वी आर गोइंग टू टेक आउट द रिलेशनशिप. सो ax by a, ये पूरा डिसोशिएट हो गया. इनिशियली इट वाज 1 मोल and these two are 0 moles because ions have not formed yet. लेकिन जैसे आपने पानी डाला, what will happen? ये आयंस बन गए अल्फा, ये भी आयन बन गया अल्फा, और ये बन गया 1 माइनस अल्फा. अभी पता है बहुत बारी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 माइनस अल्फा क्यों लिखा? क्यों लिखा बताओ? Why I have written 1 minus alpha? क्योंकि डिसोसिएशन Yes, होने के बाद माइनस होएगा 1. very good, because maximum dissociation is 1. क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, अगर वो कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका अकेले का भी 1 नहीं हो सकता ना. इट कैन बी मैक्सिमम 1. सो आई हैव कंसिडर्ड 1 माइनस अल्फा. तो पूरे टोटल में से अल्फा को बाहर निकाल दिया, तो ये बचा. अब क्या लिखेंगे? ये सबका एडिशन. इसको रीअरेंज किया यहाँ तक, आई होप सबको समझा होगा. ठीक है. उसके बाद वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर आई. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर आई? आई क्या बोलता है? वेंटॉफ ने क्या बोला?
जितने आयंस एक्चुअल में बने डिवाइडेड बाय जितने आयंस आपने लिए थे फॉर्मूला में, उसको डिवाइड करो, इट विल गिव यू द वेंट ऑफ फैक्टर। तो एक्चुअल पार्टिकल्स तो ये बन गए थे, ये लिख दिया। टोटल मोल्स कितने लिए थे? सिर्फ एक लिया था। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रीअरेंज इट, तो ये क्या हो गया, +1 विल गो हियर एंड व्हाट इट विल बिकम नाउ, -1। ये देखो इधर आ गया अल्फा इंटू 1 n -1, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अरे मैंने उल्टा लिखा क्या, नहीं बराबर लिखा, अल्फा इज इक्वल टू I-1 और ये नीचे आ जाएगा ना n-1। दिस इज द रिलेशनशिप। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, मुझे कुछ बच्चे लोग है ना, वो लास्ट लेक्चर के नोट्स पूछ रहे थे वेंट ऑफ फैक्टर के, तो मैंने वो इसलिए नहीं लिखा है बच्चों क्योंकि वो ऑलरेडी है बुक में अच्छे से दिया हुआ, तो उसके पीछे भी तुम लोग अपना सर मत फोड़ो। टेक्स्ट बुक में वो दिया है वेंट ऑफ फैक्टर, ये चाहिए तो ये लिख लो, ठीक है। राइट डाउन, ये आपका लास्ट रिलेशन था, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल थोड़े बहुत है वो ले लेती हूँ एंड देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। मैम ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों है? मैम ये पूरा why it is called as reversible process, because as you are forming more number of ions, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हैं ना, when it is a weak electrolyte, वो जो आयंस बनते हैं they are not very strong, already less number of ions are there, तो they can reverse back, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। वापस से उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और वो ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। because I am not specifying over here that it is your strong electrolyte, it can be any electrolyte, so this will be the reversible process, okay। So write down the heading, relationship between Ventov factor and degree of dissociation। relationship between Ventov का spelling ठीक से लिखना, Vent, यहाँ पे apostrophe है, Ventov factor and degree of dissociation, ठीक है। Then write down, consider an electrolyte AXBY, consider, this is very important, this can be asked for 4 marks. Derive the relationship between degree of dissociation and Ventov factor. Consider an electrolyte AXBY that dissociates in the aqueous solution as follows. That dissociates in the aqueous solution as follows। अभी यहाँ से पूरा कॉपी करो, पहले कहाँ तक करोगे, इधर तक कॉपी करो, यहाँ तक, where n is equals to x plus y, यहाँ तक कॉपी करो। दिख रहा है क्या ठीक से? आई होप यू आर एबल टू सी इट प्रॉपर्ली। यहाँ तक ही लिखना क्योंकि ये मैं अच्छे से बताती हूँ क्या फॉर्मूला है, नहीं तो गड़बड़ करेंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझेगा तो प्लीज पूछो, मैं म्यूट करती हूँ तब तक खुद को। मिस अभी वो सेंटेंस के बाद में कहाँ से लिखने का है? किधर बेटा, ये यहाँ से लिखने का, ए एक्स बी वाई एक्स वाई प्लस वाई बी एक्स माइनस, फिर लिखो इनिशियल 100 एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा मोल, दिस इज x इंटू अल्फा मोल एंड दिस इज y इंटू अल्फा मोल। उसके बाद क्या लिखेंगे, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और ये पूरा डिराइव करके सिर्फ यहाँ तक लिखो, समझा? अभी दिख रहा है ओके ना मिस, ठीक से? हाँ मिस। वो ऊपर पकड़ती हूँ ना तो बहुत हिलता है, इसके लिए उसको ऐसा थोड़ा टेढ़ा करके रखा है, ठीक है, लिख लो।
Okay, I think most of the people have done that part. अभी लिखो next. I is equals to, ऐसे बड़ा सा statement है हाँ. I is equals to, बोलूं? हाँ बोलो. I is equals to actual moles of, I is equals to actual moles of particles in solution after dissociation. ऊपर वाला हाँ, actual moles of particles in solution after dissociation. Actual moles of particles in solution after dissociation divided by moles of formula unit, moles of, नीचे लिखना है यहाँ पे, ठीक है, moles of formula units dissolved in the solution, moles of formula units dissolved in the solution. उसके बाद ये नीचे का पूरा कॉपी कर लो इधर तक, ठीक है. दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है. I will take some numericals, just solved examples also, but you have to do calculations by using logbooks. I hope you all are sitting with the logbooks. Okay, if you are done, please notify in the chat box that you are done so that I can proceed. अच्छा, मुझे ये बताओ, पूरे चैप्टर में किसी को कुछ डाउट है? ओके, अभी 9:30 तक जितने प्रॉब्लम्स पॉसिबल होंगे आई विल टेक. हाँ, आई विल शो द वीडियोस, डोंट वरी. एक्चुअली वो जूम पे देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ द वीडियो कि वीडियो दिखता है लेकिन उसका ऑडियो नहीं आता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. आई विल ट्राई टू शेयर इट. जब तुम लोग न्यूमेरिकल करोगे ना, क्वेश्चन दे देती हूँ, जब तुम लोग सॉल्व करोगे वो टाइम पे शेयर करने का ट्राई करती हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होएगा. चलो बच्चों, एनी क्वेश्चन इन सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है. इजी था ना चैप्टर? बहुत इजी था, उसमें कुछ था ही नहीं पूरे चैप्टर में. चलो अभी है ना, हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स वी विल गेट. अच्छा, कल वाला किया सॉल्व? 342 ग्राम्स पर मोल, सबका आंसर आया क्या? घर पे सॉल्व किया भी कि नहीं रे बाबा तुम लोगों ने बच्चों? ओके, आया ना आंसर? 342 किलो जूल्स ग्राम्स पर मोल. चलो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोलूं? बोलो. रेडी एवरीवन? ठीक है, चलो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. देखो ये आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स ही हैं, ठीक है, क्योंकि आपके टेक्स्ट के पीछे बहुत कम न्यूमेरिकल्स है जो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट. ठीक है, तो हम लोग ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो भी लॉग से सॉल्व करेंगे, तो तुम लोग के पास ये भी हो जाएगा और टेक्स्ट के पीछे के भी हो जाएंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा. लिखो 0.2 मोलाल एक्वियस सॉल्यूशन. मोलाल, हाँ मोलाल मतलब स्मॉल m. 0.2 मोलाल aqueous solution, 0.2 molar aqueous solution of KCl freezes at minus 0.680 degrees Celsius. Freezes at this many degrees Celsius, full stop. Calculate Ventov factor. Calculate
Ventov factor and osmotic pressure of solution. Calculate Ventov factor मतलब क्या I ना, and osmotic pressure मतलब pi of solution at 0 degree Celsius. Of solution at 0 degree Celsius. So KF लिखो, ब्रैकेट में दिया हुआ है, it is 1.86 Kelvin kilograms per mole. Do you remember हम लोगों ने इसका यूनिट ही निकाला था पूरा, ठीक है। चलो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या क्या निकालना है, वेंटॉफ फैक्टर, और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है और फ्रीजेस दिया हुआ है, मतलब इट इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। आ रही है बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। एम आई राइट? दिस इज द फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग को I चाहिए ना। फॉर I व्हाट इज द फॉर्मूला डेल्टा TF के साथ वाला, इट विल बी डेल्टा TF डिवाइडेड बाय डेल्टा TF नॉट। इतना समझा ना, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। So can I calculate delta TF here? Yes, it is very easy to calculate now. Just a minute. So I will write down delta TF जो है वो दिया हुआ है, it is how much? Minus 0.680 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ पे केल्विन क्यों लिखा है इन लोगों ने? ओके अगर इसमें हम लोग 273 ऐड करते हैं तो केल्विन होना चाहिए ना, पहले कैसे लिखा? आई थिंक देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, इट विल बी केल्विन ओनली। वो डिग्री सेल्सियस को केल्विन करो हाँ बच्चों। सो दिस मेनी केल्विन, ठीक है। मोलालिटी इज आल्सो गिवन व्हिच इज 0.2 मोल्स पर किलोग्राम। मोलालिटी मींस दिस मेनी किलोजूल्स, सॉरी किलोग्राम्स पर किलोग्राम, बराबर। अब देखो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो। आई विल राइट डाउन हियर, दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर डेल्टा TF नॉट। तो अभी मैं क्या लिखूंगी, डेल्टा TF नॉट इज इक्वल्स टू KF इंटू M। तो अभी KF का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1.86 इंटू 0.2। क्या आंसर आएगा अभी अपना इधर पे, 2 6 12 बराबर, कैरी 1 8 2 16 और ये हो गया 17, कैरी 1 ये 3 बराबर 1 2 3 मतलब 0.372 केल्विन। ये सबको समझा स्टेप, व्हाट आई डिड, दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, डेल्टा TF नॉट, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी ये नहीं है, डेल्टा TF नॉट में कैलकुलेट करूंगी, तो मैंने डेल्टा TF नॉट कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, I इज इक्वल्स टू डेल्टा TF डिवाइडेड बाय डेल्टा TF नॉट। डेल्टा TF कितना है उसको पॉजिटिव में लिखना है, वो वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज प्लस ओनली, तो जस्ट राइट डाउन 0.680 डिवाइडेड बाय, अभी हम लोगों ने डेल्टा TF निकाला, इट इज 0.372। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 680 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 372 इंटू 10⁻³ तो पहले ये सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू फॉर I। ये सबको समझा फर्स्ट पार्ट, वापस से बोलती हूँ देखो, ये है ना डिग्री सेल्सियस नहीं है, जस्ट मेक इट एज 0.680 केल्विन। KF इज गिवन, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा TF नॉट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा TF नॉट, ये लिख दो, डेल्टा TF नॉट का फॉर्मूला इसको कर दो। तो KF इंटू M, KF का वैल्यू मुझे पता है 1.86, मोलालिटी मुझे पता है 0.2, आई विल गेट द वैल्यू फॉर 0.372 केल्विन। ये किसका आया आंसर, डेल्टा TF नॉट, बराबर। आफ्टर दैट डेल्टा TF इज ऑलरेडी गिवन व्हिच इज 0.680 केल्विन। तो अभी इसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर। आइदर यू कैन डिवाइड दिस और यू कैन डू अ लॉग ऑफ दिस। क्या करना है बोलो, कैन यू डिवाइड इट? ये फर्स्ट पार्ट समझा सबको, यस और नो? यस मैम। अभी उसके बाद देखो, ये I निकालने के बाद हम लोग को क्या बोला है, ये भी निकालना है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर भी निकालना है। तो क्या लिखेंगे,
पाई नॉट इज इक्वल्स टू, देखो पाई नॉट इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, एम आर टी, याद आ गया। एम की जगह पे क्या लिखेंगे, N2 by V into RT. Do I know the value of N2? Yes. N2 कितना था? N2 was 0.2 mole. अभी किया ना। R का वैल्यू क्या रहता है, याद है किसी को? It is a fixed value. It is 0.08205 liters atmosphere per mole per Kelvin. देखो कितना बड़ा यूनिट है इसका, ठीक है। टेम्परेचर कितना बोला है हम लोग को, कितने पे निकालना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, मतलब 273 केल्विन पे निकालना है। और वॉल्यूम तो दिया है, इट इज 1 लीटर, ठीक है। तो कहना है सब्स्टिट्यूट दिस इनटू दिस फॉर्मूला, चलो सब्स्टिट्यूट करो। तो क्या लिखेंगे इधर, इट इज 0.2 इंटू 0.08205, आर हो गया, टेम्परेचर 273, वॉल्यूम 1 लीटर। तो अभी पहले इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा हम लोग को, पाई नॉट मिलेगा, पाई नॉट। समझ रहे हो कि नहीं, पहले इतना सॉल्व करो और आंसर बोलो, समझा, पहले आए का आंसर बोलो मुझे, हाँ। फर्स्ट सॉल्व एंड टेल मी द आंसर फॉर आए। इसमें लिखना, प्राइवेट में लिखना, चैट बॉक्स में, ठीक है। इतना करो सॉल्व, वी विल गेट 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस। तब तक मैं वीडियो शेयर करने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। शेयर हो गया तो बताना मुझे, दिखेगा तो, तब तक तुम लोग सॉल्व भी करते रहो। अच्छा कन्हैया, किसका आंसर है वो, 1.83 बराबर है। आई इज करेक्ट। अभी ये सॉल्व करो, हाँ, ये वाला सॉल्व करके मुझे पाई नॉट का वैल्यू बोलो। तब तक मैं जरा वीडियो का देखती हूँ क्या है। कितना आया आंसर, फटाफट सॉल्व करो बच्चों।
Okay, I've got some answers. नहीं रे बच्चा, 10⁻⁻6 कैसे आएगा? सिर्फ 1.83 आएगा। I का वैल्यू सिर्फ 1.83 आएगा। सब लोग सॉल्व करो अच्छे से। माइनस वाला देखो, चेक करो 10 कैसे रेस्ट देखो। -3 दोनों में कट होगा ना? हाँ, कैंसिल हो जाएगा। यस, करेक्ट। रुको तब तक मैं जरा देखूं तो क्या है। तुम लोग सॉल्व करते रहो। हाँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि कैसे इसको ऐड करते हैं। ये क्या फालतू है यार, फोन से शेयर ही नहीं हो रहा कुछ। मेल पे करके देखती हूँ, होपफुली हो जाए। प्लीज कीप ऑन सॉल्विंग। हाँ, कैन यू सी द स्क्रीन बच्चों? नो। नहीं, अच्छा ठीक है रुको। क्या फालतू रहता है फोन, कभी कभार गुस्सा आता है। फाइनल आंसर बोला तुम लोगों ने? हाँ बराबर है, 4.48 आया, वो करेक्ट है, बराबर। रुको हाँ जरा, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। हाँ, तो अभी यूनिट हम क्या लोग को आएगा? कौन सा? एटीएम, एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना। तो पहले वाले का जो यूनिट है वो आएगा क्या? आई तो निकाला 1.83, टू इज अ कांस्टेंट, कैंसिल हो गया। और इसका जो पाई का यूनिट आएगा ना, पाई नॉट, दैट विल बी 4.48 एटीएम। ये सबको आया रहेगा बराबर से, आया ठीक मिस। है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे? I इज इक्वल्स टू पाई बाय पाई नॉट, है ना। अब I निकाला है मैंने, कितना आया था? 1.83। पाई नॉट निकाला है, पाई चाहिए, तो क्या आएगा आंसर? पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू पाई नॉट। चलो करो, 1.83 मल्टीप्लाइड बाय 4.48, बस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। सबको समझा सम? 4 मार्क्स का सम है ये। दिस इज फॉर 4 मार्क्स। इसे एक बार शॉर्ट में रिपीट करो ना। एक मिनट। See, what was the question? We have this 0.2 molal KCl. This was the freezing point, and this was the KF. ठीक है? They've asked us to calculate I and also pi, that is osmotic pressure as well as Ventov factor. तो Ventov factor का formula क्या है? देखो, I is equal to delta TF upon TF naught. अभी ये F ही क्यों लिया? क्योंकि freezing point दिया था। अगर boiling point दिया रहता तो TB लिखते। हाँ, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिया। अभी हम लोगों को डेल्टा टी एफ तो पता है डायरेक्टली, इट इज 0.680 केल्विन, बट डेल्टा टी एफ नहीं पता है। तो व्हाट वी विल डू, के एफ इंटू एम। ठीक है, ये खाली मल्टीप्लाई किया, इससे मुझे मिल गया ये, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, यू विल गेट द वैल्यू फॉर आई। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है? पाई। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर पाई? आई इज इक्वल्स टू पाई नॉट, कहाँ गया, सॉरी, आई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन पाई नॉट, ये भी आया था ना वेंटॉफ फैक्टर से। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? पाई नॉट, और आई तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो व्हाट इज पाई नॉट? एम आर टी। एम का मतलब क्या होता है? एन टू बाई वी। जब सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट द आंसर 4.48।
बाद में इसको रीअरेंज करो, पाई इज इक्वल्स टू आई इनटू पाई नॉट, हो गया। समझा? क्लियर एवरीबॉडी? हाँ मिस समझा। हाँ हाँ। व्हाट इज द फाइनल आंसर? मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आया। कितना आया? 8 पॉइंट, हाँ बराबर है, करेक्ट, सही है कन्हैया, कन्हैया सही आंसर है। और यूनिट क्या आएगा? एटीएम, एटमॉस्फेयर। गुड, ठीक है। कैलसी पे मत सॉल्व करना, जो लोग कैलसी पे सॉल्व करेंगे वो समझ में आएगा मुझे। कैलसी पे सब राउंडेड फिगर्स रहते हैं। चलो नेक्स्ट सम दूं। सबका हुआ क्या? टेक योर टाइम, अगर नहीं हुआ है तो नो प्रॉब्लम, वी विल वेट। इफ यू आर डन जस्ट लेट मी नो सो दैट आई विल गो फॉर द नेक्स्ट सम। नहीं हुआ है तो रुको, रुकती हूँ। नहीं हो रहा है शेयर, पता नहीं कैसे करते हैं वीडियो शेयर। फिर भी ट्राई करती हूँ एक बार। जिस नीचे ग्रीन कलर का शेयर स्क्रीन है उधर टैप करो। अरे मेरा ना फोन ही अलग है रे बाबा, इसलिए गड़बड़ होता है। यूट्यूब पे सर्च करना, क्या? यूट्यूब पे सर्च करा। यूट्यूब पे किया सर्च, उधर से शेयर किया तो हो रहा ही नहीं है। ठहरो फिर भी ट्राई करती हूँ एक बार। एक्चुअली मैं पहले वैसे ही शेयर करती थी, अभी पता नहीं क्या फालतू हो गया कुछ तो। अगर नहीं हुआ ना तो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर द लिंक विद सर, और सर तुम लोग को दे देंगे। लेट्स ट्राई एक लास्ट टाइम। अरे यार ये क्या ड्रॉप बॉक्स पे साइन इन करने का। फिलहाल तो नहीं हो रहा है, देखती हूँ मैं आफ्टर सम टाइम। चलो सम हो गया क्या ये सबका? इज इट डन? शुड आई गिव यू द नेक्स्ट सम? तुम लोग खुद से सॉल्व करेंगे अभी, हाँ? मैं सिर्फ थोड़ा सा हेल्प करूंगी। रेडी? चलो और कम से कम चार सम्स तो और होने चाहिए। रेडी? लिखो। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मिस। हाँ हाँ ठीक है, तो बोलो ना बाबा, मेरे को लगा सुनाई नहीं दे रहा। चलो लिखो। 0.01 मोलाल एक्वियस फॉर्मिक एसिड, 0.01 मोलाल aqueous formic acid solution freezes at 0.021 डिग्री सेल्सियस। 0.0 एक्चुअली माइनस में रहता है पर उसको प्लस में कर देना है, ठीक है? जीरो में उतना ऐड करते हैं तो 0.021 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है Kf is equals to 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे?
मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। अभी कर सकते हैं। डू आई नो आई? डू आई नो द वैल्यू ऑफ आई? नो मैम। डेल्टा टी एफ पता है? डेल्टा टी एफ पता है क्या? क्या नहीं, ये है ना डेल्टा टी हाँ एफ। हाँ 0.021 हाँ बराबर। उसके बाद आई नहीं पता है। के एफ पता है? यस। मोलालिटी पता है? यस 0.01। तो पहले आई निकालो। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है? आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अभी किया ना, समझा? अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, एन क्या रहेगा? फॉर्मिक एसिड है मतलब HCOOH। कितने आयंस बनेंगे? H प्लस COO माइनस। समझा? तो कितने आयंस बन गए? 2। तो N कितना हो जाएगा? 2। समझा? समझा क्या? यस मैम। अभी करो सॉल्व फटाफट। पहले ये सॉल्व करके आई निकालो, ठीक है। आई का वैल्यू बोलो, और ये होने के बाद आई का वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करो, एन आएगा 2। सॉल्व करो और आंसर बोलो। हाउ मच टाइम यू नीड? 5 मिनट्स। हाँ मिस। हाँ ठीक है, कर लो। मिस वो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रिपीट करो ना एक बार। हाँ, see what they have said. We have to calculate basically alpha. So I minus 1 upon n minus 1. N is nothing but number of moles ना। तो कितने number of moles हैं यहाँ पर? It will be 2, क्योंकि अपने पास आयन से कितने बनेंगे देखो ना, फॉर्मिक एसिड। तो एसिड का क्या बनता है? एक H प्लस, और दूसरा जो बनेगा वो CO माइनस रहेगा। कार्बोक्सिलेट आयंस बनता है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट n इज इक्वल टू 2। बस बाकी सब्स्टिट्यूट करना है। I तो इधर से निकलेगा, I is equals to delta TF upon KF into M। तो प्लीज 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 लॉग से सॉल्व करना चाहिए, तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके देती हूँ। डेल्टा TF अपॉन KF into M 0.021 डिवाइडेड बाय 1.86 into 0.01। सबके पॉइंट्स हटा दो। 21 into 10 raised to minus 3। इसको ऐसे रखो 1.86, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 1 into 10 raised to minus 2। समझा? तो 21 into 10 raised to, ये प्लस माइनस 2 पर जाके प्लस 2 हो जाएगा, मतलब -1 डिवाइडेड बाय 1.86। अभी इसका लॉग एंटी लॉग निकालो, हो गया। आई आ जाएगा। बहुत सिंपल सम्स है, पता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस। इसके बाद वाला जो रहेगा वो बिल्कुल तुम लोग को हेल्प नहीं करूंगी, आप खुद से करेंगे सॉल्व। आई विल जस्ट गिव यू अ क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में टुमारो आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रिया। वो भी बहुत अच्छा और सिंपल सा चैप्टर है। सो आई विल टेक दैट टुमारो। हो जाएगा तो आंसर लिखो चैट बॉक्स में, लेट मी सी। प्लीज ईमानदारी के साथ लॉग से सॉल्व करना प्लीज। Let me know the answer for I first. Then we will do NEET and JEE ना। I will tell you how to take out the approximate answers। याद है हम लोगों ने 11th में भी किया था बहुत सारा approximate answers कैसे निकालते हैं, but here you have to take out the perfect exact answers। किसी को कुछ भी पूछना होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क, डोंट हेजिटेट।
नो आंसर्स येट. अच्छा, कुछ लोगों के आ गए आंसर. लेट मी चेक. संचिता का बराबर है आंसर. कन्हैया थोड़ा गड़बड़ कर दिया, चेक करो. संचिता ने सही आंसर किया. करेक्ट संचिता, गुड. बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व करो जल्दी जल्दी. 9 बज के गए. 2 मोर न्यूमेरिकल्स आई विल टेक, और टेक्स्ट के पीछे के जो भी होंगे वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, और नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में. टेक्स्ट के पीछे के भी ऑलमोस्ट सभी लिए हैं मैंने, तो इतना कुछ इशू नहीं है. प्रशांत, आपका आंसर बराबर है, लेकिन किधर तो पॉइंट का गड़बड़ किया. यस सृष्टि, करेक्ट. सिद्धेश, करेक्ट आंसर, बराबर. प्रशांत का सही है, लेकिन पॉइंट गड़बड़ा दिया किधर तो. प्रशांत चेक करो. 11 पॉइंट नहीं है, कुछ तो आगे पीछे है, वो चेक कर. व्हाट अबाउट अदर्स? बच्चे बाकी के क्या कर रहे हैं? देखो तो कौन कौन है. साक्षी, आर्यन, अथर्व, भाविका, दीप. कन्हैया तो करता है आंसर. कशिश, कुणाल, निधि, नियति, प्रगति. चलो. प्रियंका, प्रियंका करती है आंसर. सानिका भी करती है. कम ऑन, गिव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स बच्चों. क्या आधे लोगों ने लीव किया क्या? करेक्ट प्रणीता, करेक्ट आंसर. सो आई विल टेल यू द वैल्यू फॉर आई इज. नहीं नहीं प्रियंका, किसका आंसर है वो? फाइनल आंसर है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा गलत हो गया तुमसे. आई का आंसर आएगा 1.13. कुछ लोगों को 1.129 आया है, वो भी बराबर है, क्योंकि 1.30 हो गया ना, मतलब 30 आ सकता है या फिर 1.129 आ सकता है, तो दोनों आंसर करेक्ट है. ये है वैल्यू आई का. अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इन दिस इक्वेशन. तो अल्फा इज इक्वल्स टू आई इज 1.129 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, मतलब 1.129 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओनली ना. अभी 1 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 0.129. लेकिन हम लोग हमेशा अल्फा किस में निकालते हैं? परसेंटेज में. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100. तो मेरा आंसर कितना आएगा? 12.9% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आया समझ में? यस और नो? हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है. Should we go for the next sum? Okay, should I tell you the next question? हाँ चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. खुद से सॉल्व करेंगे सब लोग, ठीक है? राइट डाउन द क्वेश्चन. रेडी? 3.4 grams 3.4 grams of calcium chloride. 3.4 grams of calcium chloride is dissolved in 2.5 liters of water. 3.4 grams of calcium chloride is dissolved in 2.5 liters of water at 300 Kelvin. At 300 Kelvin. Question है, what is the osmotic pressure of the solution? What is the osmotic pressure of the solution?
what is the osmotic pressure of the solution if Vent-Off factor for CaCl2 is, if Vent-Off factor for CaCl2 is 2.47. चलो एकदम सिंपल सा, में एक ही फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर मिलेगा. You have to calculate over here what is osmotic pressure, Vent-Off factor I is given, W2 is given. देखो number of mass of solute is given, volume of solvent is given, temperature is given. तो एक फॉर्मूला है which you have to follow. चाहिए तो I can help you in that also, but modify करने का काम आपका है. Pi is equals to IMRT. तो पहले क्या निकालेंगे, सॉरी, pi is equals to I W2RT upon M2 into V. Do you remember this formula? This formula you have to apply. ठीक है. And this is, अभी खुद से ढूंढो W2 क्या है, R का वैल्यू क्या रहेगा, बताया मैंने बहुत बार. ठीक है. What will be the temperature? What will be your M2 molar mass? कैसे निकालेंगे मोलार मास इसका, M2 कैल्शियम क्लोराइड का, बोलो. कैल्शियम का कितना रहता है, 40 है ना. समझा कि नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है तुम लोग को. हाँ सर. थोड़ा हाँ कुछ मिस तो समझ रिएक्ट रहे हैं. करो. देखो I पता है हम लोग को, ये रहा. W2 पता है क्या है, 3.4 है ना, मास ऑफ सल्यूट है. हाँ करेक्ट लिखा रुचिता ने, बराबर. R का वैल्यू मैंने हजारों बार बताया, 0.08206, वो तो पता है. टेम्परेचर को आप डिग्री में दिया हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट, नहीं केल्विन में ही दिया हुआ है, सॉरी केल्विन में दिया है ना. हाँ टेम्परेचर इज डायरेक्टली गिवन इन द केल्विन. ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वो भी लीटर्स में ही है, तो उसका भी इशू नहीं है. ठीक है. सिर्फ क्या निकालना है मुझे, मोलार मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. तो CaCl2, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास है 40 और क्लोरीन का होता है 2 × 35.5, मतलब 40 + 71 कितना आएगा, 111 आएगा. सब बता दिया मैंने, अभी खाली सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है. किसको नहीं समझा, प्लीज रेज योर हैंड, फील फ्री टू आस्क. हैव यू अंडरस्टूड दिस? मैंने गिवन नहीं लिखा है. नहीं समझा सिद्धेश? आपने हैंड रेज किया, नहीं समझा. हेलो हेलो, नहीं समझा. अच्छा ठीक है, देखो मैं बताती हूँ. देखो सबसे पहले ना गिवन लिखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है. 3.4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मतलब देखो कैल्शियम क्लोराइड कितना दिया है, 3.4 ग्राम्स ऑफ CaCl2, और पानी कितना दिया है देखो, 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर, बराबर ना. तो इन दोनों में से सल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी अभी, दिस इज माय W2, 2 लिखा ना, मास ऑफ सल्यूट. और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज योर वॉल्यूम, क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला मैंने दिया है ऑलरेडी. ठीक है. आफ्टर दैट आई हैव अ टेम्परेचर विच इज 300 केल्विन. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव, दे हैव आल्सो गिवन अस I is 2.47. और उसके बाद क्या, R is also given which is 0.08, कितना रहता है, 8206 और 05 समथिंग. ठीक है. सारी चीजें हैं मेरे पास अभी. सो I is equals to I into क्या फॉर्मूला था, W into RT upon M2 into V. अब इसमें क्या नहीं मिला मुझे, देखो जरा सिद्धेश बताओ. I have I, yes. I have W2, yes. I have R, yes. I have T, yes. I have V, yes. क्या मिसिंग है, M2 मतलब क्या है, मोलार मास ऑफ सल्यूट. सल्यूट क्या था, कैल्शियम क्लोराइड. हाँ नहीं W2 नहीं, W2 मास है बेटा. हाँ CaCl2 बराबर. तो CaCl2 का क्या आएगा, इसका मास आता है 40 और क्लोरीन का 35.5. ये याद आ गया, 11th में किया था. तो 40 + 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 71. तो आंसर कितना आया, 111. मतलब ये जो है दिस इज माय M2. अभी समझा, ऐसे निकालते हैं ना मोलार मास. हाँ अभी सब्स्टिट्यूट करो
और आंसर निकालो। चलो अभी 9:15 हो रहा है, 9:20 को आई विल आस्क यू आंसर्स। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सॉल्व बाय यूजिंग लॉग बुक्स। प्लीज, भले रॉन्ग हो, सही हो, गलत हो, लॉग बुक से ही करो। Okay, I have got so many answers. Let me check. अरे बड़ा कौन है ये? सृष्टि, 0.08206 का लॉग आप बोल रहे हो, तो उसका लॉग 0 कैसे आएगा? पॉइंट शिफ्ट करो, 82.06 बनाओ, उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट लो एंड 82 में 06 देखो। समझा आपको मैंने क्या बोला? आपने बराबर किया है, वो बराबर है। वो जो आपने सेकंड बोला है ना, दैट इज करेक्ट। in 82 you have to see 0 and 6 but make it as into 10 raised to minus 3। अच्छा, कन्हैया का फाइनल आंसर आ गया। लेट मी चेक whether he is right or wrong। कन्हैया गलत जवाब है, चेक करो एक बार, किधर तो गड़बड़ हुआ रहेगा। जस्ट चेक इट वंस, इट इज नॉट द आंसर विच यू हैव गिवन। अच्छे से लॉग बुक से करोगे ना, यू विल गेट आंसर्स। Are you all able to solve? Yes or no? इतना टाइम लगा रहे तुम लोग? इतना इजी समय, डायरेक्ट है एकदम। सब मैंने निकाल के दे दिया तुम लोग को, पूरा गिवन लिख के दे दिया, फिर भी गड़बड़ कर रहे हो। करो फटाफट, एक तो वीडियो भी शेयर नहीं हो रहा। चलो तब तक एक और क्वेश्चन ढूंढ के रखती हूँ तुम लोग के लिए। हाँ, आंसर बोलना मुझे चैट बॉक्स में।
You have to solve the questions from textual also. पीछे दिए हुए काफी questions हैं जो blue में दिए हुए, especially from question number 8 to question number 15. कुछ कुछ उसमें theoretical भी है, and there are so many questions that you can solve by your own. मैंने maximum sums ले लिए हैं, और फिर भी नहीं समझेगा तो we can discuss it in the next lecture also. But at least try to solve. Tomorrow we are going to start with the next chapter. Chapter number 3. Ionic equilibria. और आपको एक चीज फाइंड आउट करनी है कि there are how many states of matters that you have to find out and come tomorrow. चलो फटाफट करो, कितना आंसर आया? कोई बता रहा भी नहीं है आंसर। हाँ बराबर है। कौन है ये? 1 मिनट। हाँ संचिता, आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन पॉइंट का गड़बड़ किया कुछ तो। इनटू 10⁻² में कुछ आया है क्या देखो, या फिर कुछ पॉइंट में थोड़ा गड़बड़ है। आंसर परफेक्ट है, but there is a mistake in the points, shifting of the points. Just check it. बाप रे, 9:30 बजा दिया तुम लोगों ने 3 सम करने में। नहीं आ रहा है क्या? मेरे पास एक्चुअली लॉगबुक नहीं है ना, तो मैं सॉल्व करके देती थी तुम लोग को। बहुत सिंपल है, सिंपलीफाई करके दूं क्या? नहीं आ रहा है? हेलो हेलो, शुड आई सिंपलीफाई ये वाला पार्ट? से यस और नो? अरे Yes, ma'am. Yes. Yes, हाँ ma'am. ठीक है, रुको। ठीक है, व्हाट इज आई? 2.47, W2 is 3.4, R is 0.08206. हाँ रुको रुको, wait, I'll do. Temperature is 300 divided by M2 is 111 into volume is 2.5 liters. Now what you do, whatever the points you're observing, just shift it. So it is 2.47. क्या सिखाया था मैंने? कभी भी पॉइंट वाला लेने का नहीं, 0 पॉइंट वाला। Make it as 82.06 into 10⁻², कितना शिफ्ट किया? 1 2 3 है ना, तो -3 into, इसको भी आप लोग एक होशियारी कर सकते हो, 3 into 10⁻² कर सकते हो ना, डिवाइडेड बाय 111। यश गलत जवाब, 2.5। ठीक है, अब क्या करो, इन सब का लॉग निकालो पहले। देखो क्या लिखेंगे लॉग, तुम लोग लॉग भूल गए सब, मुझे पता है। 2.47 प्लस लॉग ऑफ 3.4। हाँ प्रणीता का एकदम सही जवाब आ गया अभी। प्लस लॉग ऑफ 82.06 प्लस लॉग ऑफ 3, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, माइनस फिर निकालेंगे लॉग ऑफ 111 प्लस लॉग ऑफ 2.5, ये हो गया डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और ये गया तो कितना बचा? -1। अभी आएगा सॉल्व करने को, सबका लॉग निकालो। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 0.24 में 7 देखो, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 0.34 में 0 देखो, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 1.82 में 0, और जो छोटे छोटे कॉलम है उसमें 6 देखो। हाँ अभी बराबर आंसर है, करेक्ट। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 0.30 में 30 में 0 देखो। What will be the characteristic for this? It will be 2.11 में 1, your characteristic will be 0.25 में 0। पर पहले इन सबको ऐड करना, फिर इसको ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्ट करके एंटी लॉग निकालना, देन यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। हाँ अभी कुछ लोगों को सही आंसर मिला है। प्रगति करेक्ट आंसर, वेरी गुड। प्रगति और प्रणीता को अब तक सही आंसर मिला है। किसका पॉइंट का गड़बड़ हो गया? संचिता का। संचिता हुआ क्या करेक्ट? चेक करो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये चैप्टर खत्म किया है। ठीक है, अभी तुम, मेरे को लगता नहीं है 5 मिनट में मैं तुम लोगों को कुछ नया सम दे सकती हूँ। टेक्स्ट के पीछे के सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कभी तुम लोग बताओगे मुझे सॉल्व करके? 2 days आर इनफ? वेडनेसडे बताओगे? सी आर लेक्चर विल बी ऑन संडे, मंडे ट्यूसडे देयर वोंट बी लेक्चर। तो वेडनेसडे तुम लोग मुझे बताओगे? ठीक है, वेडनेसडे वी विल डिस्कस, जो भी सम नहीं आ रहा है दैट वी विल डिस्कस ऑन वेडनेसडे थोड़ा सा, और फिर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम कंटिन्यू करूंगी।
तब तक मिस मतलब सब करने के मिस टेक्स्ट बुक के पीछे वाले। एक एक, हाँ हाँ ये टेक्स्ट बुक के पीछे के पूरे कर। मिस आपका माइक बंद हो गया। माइक बंद है क्या आपका? हाँ मैंने माइक बंद किया है, मैंने बोला सॉल्व करो। हो गया सॉल्व, आंसर आ गया। नहीं कन्हैया अभी भी गलत है आंसर। क्या कर रहे हो तुम लोग? आंसर है 0.745 APM। दिस इज द आंसर। आया अभी आंसर सबका? Correct, correct. So what is our homework now? All textual questions you have to solve, especially numericals, and we are going to discuss that on Wednesday. Tomorrow I'm going to start with the third chapter called as ionic equilibria. ठीक है? Do read this chapter word to word. और जो वीडियो देखना है ना उसका लिंक मैं ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ यूट्यूब का, तुम लोग उधर पे देख लेना क्योंकि यहाँ पे अभी शेयर नहीं हो रहा। ठीक है? So by tomorrow I will share the link also, and Wednesday we will discuss this. Okay, chalo, bye bye everyone, take care, see you tomorrow, do your homework and come. Okay, bye bye, take care, thank you so much for sitting nicely. मिस सिर्फ न्यूमेरिकल्स ना? हाँ हाँ सिर्फ न्यूमेरिकल्स, यस। बता दूं पेज नंबर 46 पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 8 से, तो वो सॉल्व करना चालू करो। वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे वो, टेक योर टाइम टू सॉल्व। ओके चलो बाय बाय, वेलकम, बाय बाय, Hi, miss. बाय बाय।